السلام علیکم دوستو، سجیلا نثار کے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 19 کے ساتھ۔ تو قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ کاش میری بھی ان کے ساتھ موت ہو جاتی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا جسے اس نے فوراً صاف کیا تھا کیونکہ وہ موسیٰ دار پٹھان تھا۔ رونا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے دوبارہ سے زوراشا کو دیکھا جو ابھی بھی ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے جگا دے، لاکھ ناراضگی تکلیف باوجود وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس ہاتھ مارتے نیچے گرایا تھا اور نظروں کا زاویہ زمین کی جانب کیا۔ زوراشا جس کی آنکھ کچھ دیر پہلے ہی لگی تھی اچانک شور ہونے پر ہڑبڑائی تھی اور آنکھیں ملتی پٹھان کو دیکھا جو اب دوسرا گلاس بھی نیچے گرا چکا تھا۔ کچھ چاہیے پٹھان؟ وہ زمین سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر پٹھان نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا اور دوبارہ آنکھوں کو کھولا تھا اور جگ اٹھاتے بھی سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ زوراشا کان پر ہاتھ رکھتے چلائی تھی اور پہلے پٹھان پہ فرش کو دیکھا جس پر مکمل کانچ بکھرا ہوا تھا۔ پٹھان شٹ اپ! وہ اس کو بولنے کا موقع دیے دہاڑا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی اور آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ! تم کیوں آئی ہو؟ اپنے باپ ساتھ رہتی۔ وہ طنز کے نشتر چلاتا اس کا دل زخمی کر رہا تھا۔ پلیز پٹھان ایسے مت کہو، میرے پاس مت آنا، بلکہ میرے سامنے ہی مت آنا۔ واپس کمرے میں جاؤ، سامان پیک کرو، بہرام تمہیں حویلی چھوڑ آئے گا۔ وہ اسے خود کی جانب آتا دیکھ ہاتھ اٹھائے بولتا، اس کے قدموں کو وہیں جامد کر چکا تھا جبکہ اس کی آخری بات پر اس نے روتے ہوئے رفیع پہ سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کے قریب آتے پوری قوت سے اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ اس کے یوں سینے سے لگنے پر اٹھنے والی ٹھیس پر وہ ہونٹ بھیج گیا تھا اور چہرہ جھکائے اس کے سسکتے وجود کو دیکھنے لگا۔ سزا پٹھان اسے دینا چاہتا تھا لیکن دے وہ رہی تھی اپنے آنسوں کے ذریعے۔ زوراشا پلیز جاؤ یہاں سے، وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا بولا تھا کیونکہ اس کے آنسو اسے پگھلا رہے تھے اور وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی غلطی اتنی چھوٹی نہ تھی کہ وہ اس کے چند آنسوؤں پر اسے معاف کر دیتا۔ اس کی غلطی بہت سنگین تھی۔ اس نے پٹھان کا دل توڑا تھا، وہ بھی بڑی بے دردی سے، اور پٹھان کو پہلی بار لگا کہ اس نے کیوں دل لگایا، اس نے کیوں محبت کی انتہا کی۔ مت کرو، سزا دے دو مجھے لیکن ساتھ رکھ لو اپنے۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوتی اپنا ماتھا اس کی تھوڑی سے ٹکائے روتے ہوئے بولی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا راشا، میں چاہ کر بھی تمہاری بے وفائی نہیں بھول پا رہا۔ ایک بار تو اپنے پٹھان پہ یقین کرتی، یہ تھی تمہاری محبت بے اعتباری کا نام تو نہیں۔ پھر کیوں زوراشا، جاؤ یہاں سے! وہ انتہائی کرب سے بولا تو وہ مزید سسکی تھی۔ پٹھانی کہو مجھے خود کی مت لو میرا نام، مت کہو زوراشا، قربان کہو مجھے، لیوونے کہو، محبت کرو پٹھان، پر خود سے دور مت کرو، سزا دے دو۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، قابل نہیں تم میری محبت کے، میری محبت نے تمہیں مغرور بنا دیا اور اسی مغروریت میں تم نے… وہ بولتا بولتا رک گیا تھا اور اپنی گردن سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ آئی لو یو پٹھان، آئی ایم سوری نا، وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو خود کے لبوں سے چھوتے بولتی پٹھان کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ اسے زوراشا سے اس عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ زوراشا مجھے درد ہو رہا ہے پلیز، وہ گہرا سانس بھرتا اسے بے بسی سے پیچھے کرتا بولا کیونکہ وہ اس کے لمس سے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی کسی صورت زوراشا کو معاف کرنے کے حق میں نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی دروازہ کھٹکا تھا۔ دونوں نے بے وقت دروازے کی جانب دیکھا اور پھر زوراشا آنسو صاف کرتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ کون ہے؟ پٹھان اجازت چاہتا ہے۔ دروازے کے اس پار بہرام تھا جو پٹھان کی اجازت کا منتظر تھا۔ آ جاؤ۔ پٹھان سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا لیکن نظر سب سے پہلے فرش پر بکھرے کانچ پر ٹھہری تھی اور پھر روئی روئی زوراشا کو دیکھا جس نے نظریں چرائیں۔ بہرام سر جھٹکتا پٹھان کے قریب آیا تھا۔ شکر اللہ کا کہ آپ ٹھیک ہے پٹھان، ہم بہت پریشان تھا۔ بہرام مسکراتے ہوئے بولا تو پٹھان بھی مسکرایا تھا۔ بہروز خان کی کوشش اچھی تھی۔ پٹھان کے داد دینے والے انداز پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، پٹھان خود سے کمبل ہٹائے بولا تھا اور بازو پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹھان ابھی ممکن نہیں، سیڑھیاں چڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ پٹھان کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ بیڈ سے اٹھتا بولا تو زوراشا اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھی
लेकिन इसने हाथ उठाए वहीं रोका था और नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बहराम ने मुश्किल से ज़ब्त करती ज़ुराशा को देखा और खुद आगे बढ़ते पठान को बाजू से पकड़ा था और बाहरी दरवाजे की जानिब जाने लगे। इन दोनों के कमरे से निकलते ही ज़ुराशा ने बेड पर मौजूद तमाम तकिए ज़मीन पर दे पटके थे और बेड पर बैठती चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह से रोने लगी थी। मालूम नहीं मूसा कैसा होगा, जोया बेड पर बैठी टिश्यू पेपर से नाक रगड़ती सूसू करते बोली थी। दाऊद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी क्योंकि वो मुस्कुराकर अपनी शामत नहीं लाना चाहता था। वो ठीक होगा, तुम खामखा परेशान हो रहा है। दाऊद पानी ग्लास में अंडेलता इसकी जानिब बढ़ाते बोला था। सुना नहीं था, 2 गोलियां लगी हैं मूसा को और सीने पर भी लगी है, भला वो कैसे ठीक हो सकता है। इसने इससे पानी का गिलास थामते एक घूंट भरते वापस इसे थमाए कहा था, तो वो ग्लास वापस टेबल पर रखते इसके पास बैठा था। दाऊद, मुझे ले चले ना मूसा के पास। वो इसका हाथ थामे मुद्दे की बात पर आई थी। नहीं जोया, हम बताया ना वो ठीक है, नहीं जा सकता तुम। इसने माथे पर बल डाले कहा था। प्लीज़ दाऊद, आप भी ज़ुराशा से मिल लेना और मैं मूसा को भी देख लूँगी। और एक अरसा हुआ ज़ुराशा से भी नहीं मिली, इससे भी मिल लूँगी, प्लीज़ दाऊद। वो इसके सामने मिन्नत करते बोली थी। नहीं का मतलब नहीं होता है, फालतू का जिद नहीं करना, आप समझा। दाऊद नरमी से इसके आंसू साफ करता साफ इनकार कर गया था। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते दाऊद। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतरी थी। दाऊद खान तुम्हारे लिए सब कर सकता है, लेकिन फिलवक्त ये मुमकिन नहीं जो तुम कह रहा है, और अभी तुम ना मिले ये भी हम तुम्हारे लिए ही कह रहा है। इसके दोबारा कतन लहजे पर जोया ने नाराज़गी से अपने हाथ इसके हाथों से निकाले थे और लेटकर मुंह दूसरी तरफ करते आंखें मूंद ली थी। साफ नाराज़गी का इजहार था। जितना मर्जी ब्लैकमेल कर ले, नहीं जाना। दाऊद इसके पास से उठता इसकी कनपट्टी पर शिद्दत से लब रखता बोला और अपनी कमीज़ को सोफे से उठाए पहनने लगा था, लेकिन कमरे में गूंजती सिसकियों पर इसने कमीज़ पहनते हाथ रुके थे। जोया, मत करो यार। वो कमीज़ वापस सोफे पर रखता इसकी जानिब मुड़ते हुए बोला। जोया, तुमसे बात कर रहा है हम। इसने दोबारा से कहा, लेकिन दूसरी जानिब से सिवाय सिसकियों के कुछ सुनाई न दिया था। ये गलत है यार, वो बेबस सा मुंह बनाए बोला था, लेकिन जवाब अभी भी नादाद था। ठीक है, रात में जाएंगे। दाऊद हार मानते हुए बोला। आखिर इसे ही हार मानना पड़ी थी, जबकि इसके यूं हार मानने पर वो सीधी होती रोते रोते हंसी थी और दाऊद को जुबान चढ़ाई, जिसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था और आगे बढ़ते इसके बालों में उंगलियां फंसाए इसके चेहरे पर झुकते इसके माथे पर लब रखे थे और फिर इसके लबों पर लब रखते इसका सांस रोके इसे मचलने पर मजबूर कर गया था और फिर पीछे होते हंसने लगा, क्योंकि इसने नहायत बेदर्द से इसके लबों पर काटा था। वो होंठों पर हाथ रखे गुस्से से इसे घूर रही थी। दाऊद ने इसे आंख मारते कमीज उठाई और इसकी मुसलसल घूरियों की जद में हंसते हुए पहनते वापस इसके माथे पर लब रखे चेहरा थपथपाए कमरे से निकला था। पीछे वो भी मुस्कुरा दी थी और उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी थी। मूसा, आप नहीं जानते मैं कितना परेशान थी। जोया पठान का हाथ थामे परेशानी से बोली थी। तुम्हारा बाप कैसा है? पठान ने शरारती मुस्कुराहट से पूछा, जिसने मुंह बनाया था। ऐसे बाप से तो ना ही होता तो अच्छा था, जोया अफसोस से बोली थी। इसको तुम अपने साथ लाई हो? पठान ने सामने फासले पर सोफे पर बैठे दाऊद के मुतल्लिक आहिस्ता आवाज़ में पूछा, जो कभी इनको देखता, कभी कमरे में किसी चीज़ को देखता या कभी अपने फ़ोन को देखता। हाँ, मैं लाई हूँ। इसको तंग करूं? पठान ने एक आंख दबाए शरारत से कहा। मूसा। जोया ने इसको आंखें दिखाई और फिर दाऊद को देखा, जो इसके देखने पर फौरन चेहरा झुकाए मोबाइल को देखने लगा था। यकीनन वो अब इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन पा रहा था। जोराशा कहाँ है? जोया ने जोराशा के मुतल्लिक पठान से पूछा, जो इसे कहीं नज़र नहीं आई थी। कोल्ड ड्रिंक और बाकी लज़ुमात भी सर्वर ने पेश किए थे। जोराशा के जिक्र पर पठान के तासुरात संजीदा हुए थे। हाँ, राशा कहाँ है? वो दोनों जब से आए थे दाऊद ने अब अपने मुंह से चंद अल्फाज निकाले थे, वो भी जोराशा के मुतालिक। मालूम नहीं, शायद किचन में हो। पठान ने कंधे उचकाए कहा था। क्यों, इतना भी नहीं मालूम? बीवी कहाँ है तुम्हारा? ये यहाँ पर लाकर लावारिस समझकर फेंक दिया है। दाऊद के तन पर वो होंठ भेज कर रह गया था, जबकि जोया दाऊद और बखूबी जोया दाऊद और जोया बखूबी जानते थे कि पठान के मुतालिक इसके बाप चाचा ने जोराशा को इस्तेमाल किया था। मैं इसको देखती हूँ। जोया वहाँ गहरी छाई खामोशी से खौफ खाती उठते हुए बोली और दरवाजे की जानिब मुड़ी थी, लेकिन अब फौरन अपने कदम रोके पलट कर इन्हें देखा कि कहीं इसकी जाने के बाद दोनों एक दूसरे से लड़ ही न पड़े। दाऊद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा था, अलबत्ता पठान भी इसे ही देख रहा था।
जोया ने नफ़ी में सर हिलाती कमरे से निकली थी। हाउ आर यू साले बहनोई दोस्त कज़न साहिब। जोया के जाते ही पठान पीछे बेड से टेक लगाए अब मुकम्मल इसकी जानिब मतवज्जा होता मुस्कुराकर बोला था, नॉट गुड। दाऊद दो लफ्जी जवाब देता खामोश हो गया था। गोलियां मुझे लगी हैं, हालत तुम्हारी भी खराब हो गई है, क्या इतना फिक्र कि मेरे गम में खुद भी आत्मव्यय हो गए। पठान एक आंख दबाए कहा, यकीनन वो भी से तपाने का इरादा रखता था। बकवास। दाऊद ने दाढ़ी खुजाते सिर्फ यही कहा, वो जानता था इसका साला बहनोई दोस्त कज़न अब इसे सिर्फ तंग करना चाहता है। हाय, मुझे नहीं मालूम था दाऊद खान को मेरी इतनी फिक्र है, वरना 5-7 गोलियां और लगवा लेता। पठान निचला लब दांतों में दबाए शरारत से दाऊद से बोला था, जिसने इसकी बात सुनते आंखें घुमाई थी। ज़्यादा खुशफहमियाँ पालने का ज़रूरत नहीं, हम यहाँ तुम्हारी बहन को तुमसे मिलवाने लाया है, सिर्फ इसी के लिए आया है। दाऊद ने इसे नज़रें चुराते हुए इनका जाविया सामने वॉल क्लॉक पर टिकाया था। अच्छा, तो मेरी बहन के कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हो। बहन तो बस बहाना है, वो इसे सच करते बोला था और वो हो भी गया था। अगर ऐसा बकवास जारी रखेगा तो एक पल में 3 गोलियां तुम पर बरसाता यहाँ से चला जाएगा। वो सच होते उलझा सा बोला तो कमरे में पठान का जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। इतनी मोहब्बत दाऊद दिलावर खान को मुसहज़ार पठान से। पठान हंसते हुए मुसलसल हंसते हुए बोला, यार बकवास न किया करो। दाऊद ने चंद लम्हे से यूं हंसते देखा और फिर अपनी हंसी को मुश्किल रोके बोलता चेहरा झुकाए चेहरा दूसरी जानिब किया था। दाऊद। कुछ देर की खामोशी के बाद पठान ने दोबारा इसे पुकारा था। वो इसकी जानिब देखने की बजाय अपने जूतों को देख रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पठान की बात सुनकर दाऊद ने एक झटके से इसकी जानिब देखा था। मैं जितना मर्जी पत्थर दिल सख्त दिल तरीन मूसाजार पठान बन जाऊं, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। दिल धड़कता हुआ दिल लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, धड़कता हुआ दिल, और हम चलता है राशा से मिलता है। दाऊद मूसा की बात मुकम्मल होने से पहले उठता हुआ बीच में काटकर नजरें चुराते बोला, क्योंकि वो जानता था पठान इसका ज़ब्त आजमा रहा है और दाऊद के दिल में क्या है ये भी पठान जानता था, और अगर चंद मिनट और इसके पास रुकता तो यकीनन वो भी अपने पत्थर दिल में मौजूद पठान के लिए जज्बात ज़ाहिर कर देता। अच्छा चले जाओ, मेरी बहन का ख्याल रखना। पठान ने मुस्कुराते हुए कहा था तो वो बिना जवाब दिए कमरे से निकला था और अपने कमीज़ का ऊपरी 2 बटन खोले तेज तेज सांस लेने लगा। दाऊद को लगा इसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ गई हो, इसके लिए सांस लेना महाल हो रहा था। वो इसलिए पठान से नहीं मिलता था क्योंकि वो दाऊद खान की रग रग से बखूबी वाकिफ था। जो चीज़ वो खुद से भी छुपाता पठान बखूबी जानता था। अभी भी पठान अपने दिल नहीं बल्कि दाऊद के दिल के बारे में बता रहा था। वो इसलिए जोया को मना कर रहा था क्योंकि पठान इसे हमेशा बेबस कर देता था। लेकिन दाऊद को बदला लेना था पठान से, इसे नरम नहीं पड़ना था। वो पठान का जानी दुश्मन था, पठान का हमदर्द नहीं, जो यहाँ सिर्फ इसकी बहन को लाया था, वरना इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पठान मरता या जीता। दाऊद ये सब सोचते जीने उतरते खुद को अपने मकसद से भटकने नहीं दे रहा था और फिर से झटक कर हर नरम जज्बात को दिल से निकाले नीचे आया था। तुम्हारा भाई अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा जोया। ज़राशा जोया के कंधे पर सर रखे सू सू करते बोली थी। फिक्र मत करो, मूसा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसकी आंसू साफ करते बोली, नहीं करेगा, वो मुझे बेवफा कहता है और कहता है इसकी बेपनाह चाहत ने मुझे मगरूर बना दिया, और यू नो जोया आज वो जिस हालत में है मेरी वजह से है। पहले पठान के अल्फाज दोहराती आखिर में इसके कंधे से सर उठाए बोली थी, सब ठीक हो जाएगा। जोया इसे गले से लगाए बोली थी, जबकि पिलर की ओट में मौजूद दाऊद खान इनकी बातें सुनता महज होंठ भेज कर रह गया था और वहीं से वापस पलट गया था।